ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಈ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ್ತೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಿ ಆ ಪರಮ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಆತನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಿಯ ಗುರುವೇ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಇಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ. ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ. ಮಾತುಳಿದ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಆರಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀನೇ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 91ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 91, Psalm 91 for responsive reading. We'll read responsively. भजन संहिता 91 अध्याय उत्तर प्रत्युत्तर के लिए पढ़ा जाएगा. जो परम प्रथम के छाया हुए स्थान में बैठे रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे. मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा. वह तो तुझे बहेलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा. वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा. उसकी सच्चाई तेरे लिए डाल और ज़िलम ठहरेगी. तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है. तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर से 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा. परंतु तो अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा. है यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है. तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे. वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे. ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे. तू सिंह और नाग को कुचलेगा. तू जवान सिंह और अजगर को लतड़ाएगा. उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा. मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है. जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा. संकट में मैं उसके संग रहूंगा. मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा. मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा. परम प्रधान परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों को आशीष दे. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಘನತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿಯಲಾರದೆ, ನಿನ್ನ ರುಚಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಸ್ವಾಮಿ
ನಶಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗತಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಎಣುವಿಕೆ ಜೀವಿಸುವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಾಗ ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ತನಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ದಿನ ತನಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಸೇರಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಕರ್ತನೇ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ತಲುಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ, ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೇ. ಈ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರು ಈ ವೈರಸ್ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನೀನೇ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಕರ್ತನೇ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರ ಮೇಲೆ, ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇವರನ್ನು ನೀನೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಇವರನ್ನು ಬೆಳೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿಡು. ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇವರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನೀನೇ ಇವರ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಕರ್ತನೇ. ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೇ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನೀನೇ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು ಕರ್ತನೇ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಈ ದೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುವಾಗ ದೇವರೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸು. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಜಾತಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ಭಯವನ್ನು ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಸಾವಿನ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ತನೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನೆ, ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು, ಸಭಾ ಪಾಲಕರು, DS ಗಳು, ಬಿಷಪ್ಸ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಯೆಹೋವನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಪಡಿಸುತ್ತಾ
ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀನೇ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೋ. ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಸಾಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ಮೇಡಮ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಆಶ್ವಸಿಸು, ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಅವರು ಈ ಮುಂಬೈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನ, ಬಲ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸು. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನೇ ಮಾತನಾಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪ್ರಶಂಸಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗ 2ನೇ ಹರ್ಸರು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 7ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. In the Old Testament, the scripture portion is taken from 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. पुराने नियम का भाग 2 राजा 4 अध्याय 1 से लेकर 7वां वचन तक. 2 राजा 4 अध्याय 1 से 7 वचन तक. उसके बाद हम नए नियम का पाठ पढ़ेंगे. याकूब का लिखा पत्र, उसका 4 अध्याय 6 से लेकर 10वां वचन तक. याकूब का पत्र 4 अध्याय 6 से 10. From the New Testament, the reading is taken from James chapter 4 verses 6 to 10. James 4, 6 to 10. ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇನೆ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗ ಮೊದಲು. भविष्यद्वक्ता के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाएगा. एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है. उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना. फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना. तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया. तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई. जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ. उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा. तब तेल थम गया. तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तो अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों को आशीषित करें. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ರಿಂದ 10ನೇ ವಚನ. Book of James chapter 4 verses 6 to 10. James chapter 4 verses 6 to 10. याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 6
छठा वचन से 10वां वचन तक। आई विल बी रीडिंग फॉर यू। But he gives a greater grace. Therefore it says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be miserable and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning and your joy to gloom. Humble yourselves in the presence of the Lord, and he will exalt you. May the good God have his blessings upon the reading of the portion. Amen. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಇಡೋಣ। इस समय परमेश्वर के वचनों की ओर अपनी ध्यान को केंद्रित करेंगे और परमेश्वर के वचनों से जानने की प्रयत्न करेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर के वचनों में पुराने नियम से लिया हुआ भाग, दूसरा राजा, उसका चौथा अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक हम लोगों ने उसका अध्ययन किया। प्रियो, इस अध्ययन में ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗುರುತಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅಥವಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಿಂದನೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಅದೇನಂತಂದರೆ, ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ದಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ದೇ ಟೀಚ್ ಅಸ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್, small stories from the Bible, and moreover this portion is bit interesting. ये जो भाग हम बचपन से ही सुनते आए हैं संडे स्कूल के ज़रिए, और इवन हम कलीसिया में भी इन विषयों को हम सुने हैं। यहाँ पर ये देखते हैं कि एक स्त्री है, वो जैसे पढ़े हुए भाग में वो स्त्री के 2 बेटे हैं और उसका पति जो मर गया है, गुजर गया है, और उसका पति एलिशा के 7 या एलिशा के चेलों में से एक था, या इस तरह कहिए कि वो परमेश्वर के भय मानने वाला एक छोटा सेवक। और वो गुजर जाने के बाद या मर जाने के बाद अब ये परिवार का परिस्थिति बहुत भयंकर हो चुका है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और ऊपर से उनको कर्जा भी है। अब जो कर्जदार है वो इस कर्जा कैसे वापस लेगा, तो इसीलिए वो कर्जदार शायद इनके पास जोर जबरदस्ती से या दबाव से इनके 2 बेटों को वो अपने साथ उनको गुलाम बनाकर ले जाना चाहता है उस ऋण के बदले। और जब ये स्त्री एलिशा के पास जाती है, एलिशा भविष्यद्वक्ता के पास जाती है, तो एलिशा इस स्त्री को कुछ नहीं बड़ी बात कहता है, सिर्फ इतना कहता है कि तेरे पास क्या है। और ये स्त्री उस भविष्यद्वक्ता को, एलिशा को, परमेश्वर के सेवक को ये कहते हैं कि मेरे पास 1 हंडा तेल है, बस, उसके सिवा और कुछ नहीं है, या 1 लोटा तेल है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। तब एलिशा ने उससे कहा कि जा, जितने बर्तन हैं सब खाली बर्तन उसमें उंडेलते जा, और तेरे आजू बाजू में रहने वाले तेरे पड़ोसियों से भी खाली बर्तन मांग ले और उंडेलते जा। और ये स्त्री इतनी सुनकर अपने घर जाती है, जैसे उसने कहा वैसे द्वार बंद करती है अपने बच्चों के समेत, और आजू बाजू वाले से उनके खाली बर्तन मांग कर रख कर सभी में तेल उंडेलते रहती है। उस लोटा भर का तेल थमता नहीं है, वो बढ़ते जाता है, जितने खाली बर्तन सब में भर गया। वो पूछती है और उसके बच्चों से कि और बर्तन ले आ। बच्चे कहते हैं कि माँ, बर्तन, अब खाली बर्तन खत्म हो गया। और जैसे वे बोलते हैं उसी क्षण ये तेल बहना बंद हो जाता है। प्रियो, ये जो कहानी है या ये जो घटी हुई घटना है,
ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ದೇವರು ಆತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ ಆತನು ಬಿಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಉಪವಾಸವಾಗಿ ಇಡಲ್ಲ. ಆತನು ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಜಯ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. अगर आपको जीत या कामयाबी आपके जीवन में हर वक्त चाहिए तो कुछ कामों को कुछ आत्मिक विषयों को करना बहुत ज़रूरी है. यदि हम इन विषयों को ना करें तो हो सकता है कि हम कामयाबी इस दुनिया की रीति से पा लेंगे, लेकिन उसमें हमें खुशी नहीं रहेगा, ना ही वो कामयाबी रहेगी. एक दिन बैठ के हम पछताएंगे, रोएंगे कि मैंने इतना सारा कुछ कमाया लेकिन परमेश्वर की आशीषों से वंचित रहा ना. देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही श्रीमंत है, बहुत ही पैसे वाले हैं. अब हमारे देश में देखिए, उदाहरण के तौर पर अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा. देखिए, यहाँ पर इन दोनों का हम बारे में ज़रा बात करेंगे. ये दोनों, ये मुकेश अंबानी विशेष करके, उनके में एक लेख पढ़ रहा था. उसमें इस तरह लिखा है कि उसके घर में कम से कम 650 लोग नौकर काम करते हैं. उसके घर में 650 लोग काम करते हैं, नौकर उसके. और इस तरह उस लेख में था कि उन नौकरों को जो तनख्वाह वो देता है, जो नया लगता है, वो 6-7 हज़ार से प्रारंभ होता है, लेकिन उनके ज़्यादातर नौकरों को 2 लाख 2.5 लाख के आसपास पगार है. सोचिए, 650 में से अगर 500 जन को भी अगर 2 लाख के आसपास पगार होगा तो कितना पैसा ये लोगों को या उनके पास काम करने वालों को देता है. तो इससे हम दुनिया की अगर तुलना या दुनिया के सोच से अगर देखें तो हम कहेंगे कि ये बहुत ही कामयाब व्यक्ति है. ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन. दूसरी ओर हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, रतन टाटा. उनकी कंपनियां पूरे देश में, विदेशों में फैली हुई हैं. वो भी अगर्भ श्रीमंत है, भयंकर श्रीमंत है, बहुत ही अमीर व्यक्ति है. सादा जीवन जीता है लेकिन पैसों में भरपूर है. ये व्यक्ति की खासियत ये है कि वो लोगों को, इस देश की उन्नति के लिए लोगों को वो केवल उसके हाथों के नीचे काम करने वाले के लिए नहीं, बल्कि औरों को भी वो बहुत सहायता करता है, उनके जीवन में परिवर्तन लाता है. ये दोनों अपने अपने तरीके से हम कहते हैं कि ये लोग कामयाब हैं. अब हमारे कलीसिया में भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे चर्चों में, जो ये कहते हैं कि हमने जो कुछ पाया या जो कुछ हमने चाहा वो पाया, और हम उनको देखकर कहते हैं कि ये कामयाब है. प्रियो, कामयाबी की जो परिभाषा है वो ये नहीं है. कामयाबी की परिभाषा ये है कि तुम परमेश्वर के दृष्टि में एक कामयाब व्यक्ति बनो. परमेश्वर की दृष्टि में एक कामयाब व्यक्ति बने रहना, दुनिया की दृष्टि में नहीं. क्योंकि ये दुनिया जो है ये मरने वालों की ये स्थान है, ये मरने वालों की स्थान है.
Remember, this world is the land of dying. Nobody can stay here eternally. यहां पर एक भी व्यक्ति अमर नहीं है. ये मरने वालों की भूमि है, यह स्थान है, ये दुनिया. कामयाबी अगर पाना है तो कामयाबी वहां पर पाना है जहां जीवन का या जीने वालों का स्थान है, या जीवन कभी ना अंत होगा, वो स्थान. उस स्थान में कामयाबी या कामयाब होना जरूरी है. और वो वहां पर कामयाब होने के लिए यहां पर हमारा परिश्रम, यहां पर हमारा मेहनत, यहां पर हमारा जो परमेश्वर ने कहा है उन बातों का अनुसरण करेंगे तो हम उस स्थान में हम कामयाब होंगे. और वो स्थान में हमें आज नहीं तो कल जाना है. एवरी वन ऑफ अस वी नीड टू गो सूनर और लेटर टू द लैंड ऑफ लिविंग. वी आर इन द लैंड ऑफ डाइंग. वी हैव टू गो टू द लैंड ऑफ लिविंग, एंड देयर in the land of living, the success matters. The success matters if you are attained through the standards of God. अगर हम परमेश्वर के चाहत अनुसार हम कामयाबी पाए हैं तो वो वहां पर मायने रखता है. इस धरती पर आप जो कुछ भी कमाए, जितने भी कामयाब हो, आपको मरना है, आपको छोड़कर जाना है. आपका हर चीज यहीं पर रह जाएगा. यहां तक कि आपका नाम भी आपके पास नहीं रहेगा. आप जिस समय आपका श्वास छोड़ देते हैं उसी समय आपका नाम बदल जाता है. आपको लोग पार्थिव शरीर कहते हैं, डेड बॉडी कहते हैं. प्रियो, इस जो पड़ी हुई कहानी है, ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗದಿಂದ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಕರಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನ ಬಾಳಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ, ಅಥವಾ 3 ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ तीन बातों को जरूरी है हमारे जीवन में. पहली बात ये कि आप वापस या नए सिरे से आपको जीना है या जीवन पाना है. यू हैव टू बी बॉर्न अगेन. ನೀವು ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ಆತನಗೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವಸನೀಯ ಜನರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಬಾಳಬೇಕು. यू हैव टू बी अ फेथफुल पर्सन. आपको एक विश्वसनीय व्यक्ति बनकर उसके दृष्टि में जीना है. थर्ड, आपको पवित्र आत्मा से हमेशा भरे हुए रहना है. यू मस्ट बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट ऑल द टाइम. ನೀವು ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಜನರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಜೀವಿಸುವಂತರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಯದ ಜೀವನೆ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೀರ, ಅಥವಾ ನೀವಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾತಿ ಉಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಾಗಬಹುದು. ಯು ಮೇ ಬಿ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಆರ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗದಿಂದ ಕೆಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ, ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಿಯವಾದವಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆಕೆನ ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡ, 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಯೌವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬಹುದು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ये दोनों शायद जवान बचे रहेंगे, इन दोनों को मैं इनको दास बनाकर मैं ले जाऊंगा.
जो कर्जा मैंने दिए उसके बदले में। प्रियो, ये ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि हो सकता है कि अगर हम अपनी तुलना इस घटने में या इस जो विषय में करें, तो हम ये देखते हैं कि हम अपने ताकतों से हर विषय, हर प्रयत्न हम करते हैं, और हम ये देखते हैं कि जबकि हम क्रिश्चियंस हैं, परमेश्वर के बारे में जानकार लोग, परमेश्वर को पूजनीय लोग या पूजा करने वाले लोग या परमेश्वर के आराधक, हम सारे लोग अपने अपने प्रयत्नों से, अपने अपने ताकतों से हर विषय करते हुए परमेश्वर को भी हम खुश करने के लिए या परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। हम अपने दिलो दिमाग में परमेश्वर किस तरह उसकी सेवा करेंगे उसका भी हम प्लान बनाए रखते हैं, और हम सेवा भी करते हैं। कुछ लोगों को चुना जाता है चर्च में कि आप भाई ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। लोग पहले बहुत खुशी से उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुत ही खुशी से आगे आते हैं और ये सोचते हैं कि वाकई ये काम परमेश्वर ने मुझे दिया है और मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए परमेश्वर ने जब चुना है तो परमेश्वर मुझ पर मेहरबान है। ये सोचकर हम अपने प्रयत्नों से, अपने सोच से, अपने ताकत से, अपनी काबिलियत से काम करने लगते हैं, और काम करते करते कुछ समय ऐसा आ जाता है कि हम पूर्ण रीति से वी गेट डिसअपॉइंटेड। हम नकारात्मक सोच हमारे अंदर पनकने लगता है। हम ये सोचते कि ये क्या है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, और हमारे अंदर द्वेष, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति गुस्सा, झगड़ा, ये सारी बातें प्रारंभ होती हैं। आपने अनुभव किया होगा, अगर आप कमेटी में हैं तो अनुभव किया होगा, कमेटी में अक्सर झगड़ा क्यों होता है, अक्सर वाद विवाद क्यों होता है। बहुत कम कलीसिया हैं जहाँ पर वाद विवाद नहीं होता, लेकिन बहुत सारी कलीसिया में कमेटी मीटिंग में वाद विवाद भयंकर रूप ले लेता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम परमेश्वर के योजनानुसार या परमेश्वर के इच्छानुसार हमारा जीवन व्यतीत ना करते हुए इस दुनिया के सोच के अनुसार हम कार्य को करने लगते हैं। हालांकि हम परमेश्वर को खुश करने की प्रयत्न करते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं करने की वजह से बहुत सारे समय हम चूक जाते हैं। और ये कड़वी सच है, ये कड़वी सच है कि हम परमेश्वर के लिए करना तो चाहते हैं, कार्य करने के लिए इच्छुक है, लेकिन हम कार्य करने में सफल नहीं होते। कारण हमारा वैयक्तिक स्वभाव, हमारे स्वभाव में हम बदलाव नहीं लाते। जब परमेश्वर ने आपको चुना है, जब परमेश्वर ने आपको मुद्रित किया है, जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो आप में बदलाव नहीं लाना चाहते। हम अपने में बदलाव नहीं लाना चाहते। हमारे पुराने गुणों को ही हम सामने रखकर उस गुणों के अनुसार हम कार्य को करने चाहते हैं, और ये करने से हम अक्सर हार जाते हैं, चूक जाते हैं। We end up in losing our credibility. प्रियो, ये स्त्री यहाँ पर आती है एलिशा के पास, और उसके पास जो है वो बहुत ही सुंदर रीति से बयान करती है और कहती है कि, और पूरा अपने आप को जो सच है वो बताती है
कहते कि मेरे पास केवल केवल और केवल एक लोटा भर के हंडी भर का तेल है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। हम भी जब परमेश्वर के सामने आते हैं या परमेश्वर के पास जब आते हैं तो प्रियो, जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने पूर्ण रीति से अपने आप को जैसे हम हैं वैसे हम रखें। हम परमेश्वर को गुमराह नहीं कर सकते। हमारी आत्मिक जीवन, किसी के आत्मिक जीवन पहले से मजबूत नहीं रहता। हमें उसमें बढ़ने की इच्छा जाहिर करना पड़ता है, और जब हम उसमें बढ़ने के लिए प्रयत्न करने लगते हैं, एक एक हमारा पुराने गुणों को हटा हटा कर, फेंक फेंक कर, निकाल कर जब उसके पास खाली होकर आते हैं या उसके पास पूर्ण रीति से हम उसके शरणागत होते हैं, तब वो हमें स्वीकारता है। यहाँ पर ये स्त्री अपने आप को पूर्ण रीति से एलिशा के सामने उसने बताया कि मेरे पास कुछ नहीं है, केवल वो तेल छोड़कर। दूसरा हम ये देखते हैं कि एलिशा, ये परमेश्वर का सेवक, जब उस स्त्री से पूछता है या मालूम पड़ता है कि उसके पास केवल एक छोटा या बर्तन में थोड़ी छोटी सी बर्तन में तेल है, तो वो कहता है उसे कि जा, ये जो तेरे पास तेरे अपना जो तेल है जिसका थोड़ा मूल्य रहेगा, ये तेल इसको तू ले जा और खाली बर्तनों में उंडेल। देखिए, परमेश्वर हमेशा, अगर हम पूर्ण रीति से खोखला जीवन जी रहे हैं, हमें पता है कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। बाहर वाले हमें न्याय नहीं कर सकते हैं, या बाहर वाले हमारे विषय में सही नहीं बोल सकते हैं। हमें स्वयं हमको पता है कि हम कौन सी स्थिति में हैं। हम अपने अगर हमें ऐसा लगता है कि आज मैं आत्मिक स्थिति में बहुत कमज़ोर हूँ, तो मेरी नाम से या मेरे ताकत से या मेरी काबिलियत से मैं आत्मिक स्थिति में या परमेश्वर को खुश करने में मैं सक्षम नहीं हूँ। मैं सफल, परमेश्वर को खुश करके मैं सफल जीवन नहीं जी सकता, कामयाबी का जीवन नहीं जी सकता। मेरे पास जो है वो मैं परमेश्वर को समर्पित करना जरूरी है। देखिए, मेरे पास, अब हम सोचेंगे कि हमारे पास क्या है। जो भी है उन चीज़ों का कोई मायना नहीं है। फिर क्या है? एक बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आपके पास परमेश्वर ने, जब आप ईसाई जीवन में या ईसाई परिवार में आपने जन्म लिया, द डे यू आर बॉर्न इनटू द फैमिली ऑफ गॉड, तभी से परमेश्वर ने आपके जीवन में तेल रखा है। तेल ये तेल हम परमेश्वर की आत्मा की तुलना में करते हैं। ऑयल इज ऑफन सिंबॉलिक फॉर गॉड्स होली स्पिरिट, और वो है इसीलिए परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा जो तेल रूपी है, वो है इसीलिए आज हम जीवित हैं। वो है इसीलिए वो हमारे लिए परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर से वो याचना करता है, प्रार्थना करते रहता है हमारे जीवन के लिए। हम जी रहे हैं, और हमें जैसे हमारे जब परमेश्वर के पास आएंगे या हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को अर्पण करेंगे, तो ये परमेश्वर की आत्मा को हम कहेंगे कि प्रभु, तो ऑलरेडी मेरे पास है, ये ले, मुझे तो बदल, मुझे तेरा कार्य मुझ में बहुत ही सामर्थ्य से तू करने लग। और ऐसा करने से हम पूरे अपने आप को खाली करते रहते हैं, और जैसा हम दुनिया के विषयों को
हमारे जीवन से हटाते हुए अपने आप को खाली करेंगे, नम्र होंगे, हमारे गुणों में हम बदलाव लाएंगे, तो तब परम प्रधान परमेश्वर की आत्मा हमें बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और वो हमें एक समय ऐसा आएगा कि हम पूर्ण रीति से परमेश्वर की आत्मा से भर जाएंगे। परमेश्वर की आत्मा से हम भर जाएंगे, और परमेश्वर की आत्मा से भरने के बाद हमारा जीवन बदल जाएगा। देखिए, ये स्त्री, उसने जब पूर्ण रीति से अपने आप को या अपने पास जो है वो बताया, और उसने जब एलीशा ने कहा कि खाली बर्तन ले आ, और खाली बर्तन में तेल उंडेलते रहे। खाली बर्तन, देखिए, खाली बर्तन वो पूर्ण रीति से खाली होता है, और खाली बर्तन में उसका स्वयं का कुछ नहीं होता, और उसके ऊपर ढक्कन भी नहीं लगा होता। वो स्वीकार करने के लिए तैयार है, वो अपने आप में भरने के लिए तैयार है। उस तरह हमें खाली बर्तन बनना जरूरी है। तब परमेश्वर की आत्मा हमें बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। तभी हमारा मूल्य बढ़ जाएगा, और वो कामयाबी है। दैट इज द सक्सेस। इफ यू आर फिल्ड विद होली स्पिरिट, इफ यू आर फिल्ड विद लॉर्ड स्पिरिट, इफ यू आर फिल्ड विद गॉड्स eternal blessings, then you are termed as successful. तभी आप कामयाबी का चरण चुम सकते हैं। कामयाबी उसे कहते हैं। दुनिया में कामयाबी पाकर फायदा नहीं है। हम हर चीज यहां पर छोड़ के जाएंगे, लेकिन कामयाबी यहां पर हमें कमाना है, जो अनंतकालीन तक हमारा साथ रहेगा। और वो कमाने के लिए हमें परमेश्वर के इच्छा अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करना जरूरी है। जैसे स्त्री ने की, आई, कही परमेश्वर के सेवक को, परमेश्वर के सेवक ने उसे जो कहा वो उसने किया, और अपना ऋण चुकाकर वो खुशी का जीवन, जय का जीवन जीने लगी। प्रियो, परमेश्वर की आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, हमें जय देता है, हमें खुशी देता है, हमें हर विषय वो हमें देता है, यदि हम अपने आप को खाली करेंगे तो। अगर नहीं खाली करेंगे तो वो हमें नहीं बढ़ता, वो हमें नहीं बढ़ता, और हम इस दुनिया के नज़रों में कामयाबी पा सकते हैं, लेकिन अनंतकालीन की कामयाबी हम नहीं पा सकते। अनंतकालीन के लिए परमेश्वर के पास, जो मैंने पहले कहा कि जीवन का वो भूमि है, वहाँ पर हमें जाना है, रहना है। तो उस राज्य के लिए आप काम करें। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और उसके समक्षता में इन प्रियजनों को अर्पण करेंगे, जो अपनी जन्मदिन इस सप्ताह में मना रहे हैं, जो शादी की सालगिरह मना रहे हैं, और जिनको परमेश्वर के स्पर्श की आवश्यकता है, उनको प्रार्थना में हम रखेंगे। और इसके अलावा सूचना ये है कि ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆ ಆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣಿಕೆಯ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡರ್, ಇವರು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೈತನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೋಗ್ತೇನೆ.
ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದಿನ 5ನೇ ತಾರೀಕು 5th ಜುಲೈ ಡೇವಿಡ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಚಿನ್ನಯ್ಯ, 7th ರೀಟಾ ಲೂಕಸ್, 7th ರೂತ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮಾರ್ಕ್, 7th ರೂತ್ ರಾಜು ಮಾಳೆ, 9th ಆಲಿಸ್ ಸೊಲೊಮನ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, 9th ನೆಲ್ಸನ್ ಲಾಜರಸ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್. ಮತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ 5th ಜುಲೈ ಈ ದಿನ ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಮತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡೋಣ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಆಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. प्रार्थना करना. आइए प्रार्थना करें. प्रिय परमेश्वर, हम आपको फिर एक बार धन्यवाद करते हैं इन सारे लोगों के लिए जो अपनी जन्मदिन इस सप्ताह मना रहे हैं, जो शादी की सालगिरह इस सप्ताह मना रहे हैं. पिता, इन प्रियजनों को आशीषित करें. डेविड चिन्या अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं, रीटा लुकास आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, रूथ मार्क के लिए, रूथ माड़े, एलिस के लिए, नेल्सन के लिए. पिता, इन सबों को जैसे ये अपने जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, पिता इनके साथ आप रहिए, इनके जीवन को आप स्पर्श कीजिए, इन्हें सुरक्षित रखिए. अंधकार की कोई शक्ति, शैतानी कोई ताकत में न पड़ते हुए, ना ही बीमारी में, ना ही महारोग में पड़ते हुए, ये हमेशा स्वस्थ रहकर परमेश्वर की योजना अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हुए उसी की अनुग्रह में चल सके, ऐसी आशीषित करें. उसी तरह प्रार्थना करते हैं मिसेस एंड मिस्टर विल्सन हिरेकेरूर. पिता, इस प्रिय परिवार को आप आशीषित करें. इन्हें इनके जीवन के नए शादी के नए सालगिरह में ले जा रहे हैं. पिता, इनकी ये सालगिरह आशीषदायक हो और आने वाले हर साल इनके लिए परमेश्वर आपकी योजना अनुसार खुशी से ये बिता पाए, ऐसे अनुग्रह करें. इनके परिवार को जिस तरह आपने संभाला अब तक, पिता आने वाले दिनों में भी इन्हें संभाल कर इन्हें चलाएं. इनके ज़रिए आपके कार्य को प्रकट करें. पिता, उसी तरह प्रार्थना करते हैं उन प्रियजनों के लिए जो बीमार अवस्था में, कमज़ोर अवस्था में हैं, जिनको आपकी स्पर्श की आवश्यकता है. पिता, इन सारे लोगों को हम आपके कदमों में रखते हैं. प्यार प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी स्पर्श रिचर्ड को, सुतार आंटी उनका बेटा लॉरेंस को, कुरी आंटी के लिए, वासंती आंटी के लिए, अर्थर आंटी के लिए, जॉन इमैनुअल इस भाई के लिए, जोएल बेन इस बच्चे के लिए, और हमारे दोबरवाड़ी के परिवारों के लिए जो पीड़ित हैं. पिता, इन सारे लोगों को आप छूकर चंगाई दीजिए, स्पर्श कीजिए. आपके हाथों का, घायल हाथों का स्पर्श का गर्माहट इनके जीवन में उतारे, ताकि ये पूर्ण रीति से स्वस्थ हो सके और परमेश्वर के कार्यों के प्रति गवाह के रूप में ठहर सके आने वाले दिनों में. पिता, प्रार्थना करते हैं उसी तरह इस कोरोना वायरस के लिए. पिता परमेश्वर, इस वायरस के ज़रिए इस दुनिया में बहुत सारे लोग पीड़ित और बहुत सारे लोग मर भी गए हैं. पिता, इस महामारी को इस धरती से हटा दीजिए और हम सारे लोगों को फिर एक बार भयमुक्त कराएं, ताकि हम सारे लोग खुशी से आपके मंदिर में, आपके चरणों में अपने आप को अर्पण करने के लिए हम उपस्थित रह सकें. पिता, हम सारे लोग फिर एक बार आपके चरणों में हमारे सिरों को झुकाकर धन्यवाद करते हैं. प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके बच्चे जो इस आराधना के बाद दान, आपके दिए हुए हर एक आशीषों के प्रति जो दान जमा करेंगे, पिता उस दान के ऊपर आपकी आशीष हो, उसे बढ़ाएं, आपके राज्य के विस्तार के लिए उपयोग करें, और उसी तरह इन परिवारों में भी और अधिक आसमानी आशीषों को भर दें. धन्यवाद करते हुए हम सारे लोगों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं. पिता, हमें सुरक्षित रखें और अगले हफ्ते फिर एक बार हम आपकी आराधना कर सके, ऐसे हमें मौका दे. धन्यवाद करते हुए सारा मान महिमा गौरव आप ही को देते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಹವಾಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶ್ವಸಿಸಲಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇನ್.